Doing well. So let's continue with the next topic, that is plastics, which is under burn and its management, subheading nursing management of the patient with integumentary disorder. So this is Manisha Pandit, and let's continue with the chapter. So plastic surgery. What is plastic surgery? The name is taken from the Greek word that is plastikos, which means to form or mold. ठीक है, to form or mold means बनाना या mold करना. ठीक है, तो this is the meaning of term plastikos, which is Greek word which means to form and mold. Next, plastic surgery is a special type of surgery that involves both person's appearance and his or her ability to function. ठीक है, पर्सन का जो नॉर्मल अपीयरेंस है उसको इन्वॉल्व करता है, प्लस फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन की एबिलिटी को अचीव करने के लिए भी ये क्या करता है, हेल्प करता है प्लास्टिक सर्जरी. ठीक है, इट intend to improve patient's appearance, self-image and confidence through both reconstructive and cosmetic procedures. ठीक है, it focuses on appearance of the patient, self-image and confidence of the patient. If we are good looking, if our appearance is good, then our self-image is improved, and then also confidence of the patient improves as well. ठीक है, so for that we go for reconstructive and cosmetic procedures. Next, broad classification of plastic surgery includes cosmetic enhancement and reconstructive operations. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉस्मेटिक एनहांसमेंट मीन्स हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर है वो बना है, गॉड made it, it's a God gift, but to enhance the beauty, to enhance the aesthetic, we go for surgery, and that is known as cosmetic surgery. ठीक है, and what is reconstructive operations? reconstruct करना, उसको दोबारा से बनाना. ठीक है, so we will go for reconstructive operations. So first, cosmetic plastic surgery, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है? मेडिकल एस्थेटिक, टू इंक्रीज द ब्यूटीनेस ऑफ द पेशेंट, देन एनहांसमेंट ऑफ द अपीयरेंस लुक पेशेंट का एनहांस करना, मेंटेनिंग नॉर्मल अपीयरेंस पेशेंट को मेंटेन करना. सम व्हाट हैपेंस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, सो उनका फैट रिमूव करके उनको नॉर्मल ह्यूमन लाइक का अपीयरेंस देना. दिस इज कॉल्ड मेंटेनिंग नॉर्मल अपीयरेंस. ठीक है, सो दीज आर द पर्पस ऑफ कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी. नेक्स्ट type of the plastic surgery. So first is tummy tuck, that is also called abdominoplasty. Next is eyelid surgery, that is called blepharoplasty. Then chemical peel, then nose job, that is rhinoplasty. Eye surgery, that is otoplasty. Face lift or brow lift or chin lift. ठीक है, then next is liposuction, then hair transplantation. These are the type of cosmetic surgery which we are going to deal further. Next is types of cosmetic surgery में आता है first tummy tuck, abdominoplasty. As the name suggests, it is abdominal surgery, cosmetic surgery of abdomen. ठीक है, so abdomen is reshaped and formed, रिमूवल ऑफ एक्सेस स्किन एंड फैट, एक्सेस स्किन है, एक्सेस फैट है, उसको रिमूव करना. देन एब्डोमेन इज रीशेप्ड एंड फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट ब्लेफेरोप्लास्टी, आईलिड सर्जरी. आईलिड सर्जरी में क्या करना है? आईलिड्स आर रीशेप्ड, उनको रीशेपिंग की जाती है. अ परमानेंट आई लाइनर इज अप्लाइड, एक परमानेंट आई लाइनर अप्लाई कर दिया जाता है. देन द एम इज टू रीशेप द अपर और लोअर आईलिड बाय रिमूविंग और रीपोजिशनिंग एक्सेस फ्लूइड.
एक्सेस टिश्यू, ठीक है। अपर आईलिड और लोअर आईलिड को रीशेप किया जाता है, और अगर एक्सेस टिश्यू है वहाँ पे उसको रिमूव करके या फिर रिपोजिशनिंग करके, ठीक है। दिस इज अबाउट eyelid surgery. Next is chemical peel. What is chemical peel? Popular among people with acne, scars and wrinkles. ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने है, स्कार्स है, रिंकल्स है, ऐसे पेशेंट में केमिकल पील बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इट इन्वॉल्व्स फिनॉल, TCA that is trichloroacetic acid, AHA also known as glycolic acid, BHA salicylic acid, ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है. केमिकल पील मीन्स एक फेस मास्क लगाया जाता है पेशेंट में. इन सब कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकता है या फिर ये सिंगली भी यूज़ कर सकते हैं. इन सब का मिक्सचर बना करके पेशेंट को एक मास्क लगाया जाता है और पील आउट किया जाता है, सो दैट जो एक्ने है, स्कार है, रिंकल्स है, वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है. टाइप्स है लाइट, मीडियम पील और डीप पील, ठीक है. देन नेक्स्ट इज nose job. Nose job also known as rhinoplasty, which includes reshaping of nose, ठीक है. As you can see the image, ठीक है, यहाँ पेशेंट का पहले नोज ऐसे था और अब ऐसे हो गया. दिस इज rhinoplasty, ठीक है. डन बाय otolaryngologist. The name of the doctor or the profession is otolaryngologist, ठीक है. Aim is to improve the appearance of the nose and sometimes its function as well if the patient has breathing problem, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए तो ये किया ही जाता है, बट सम टाइम क्या होता है, कभी कभी पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होता है. उनका नोज़ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है दैट कैन लीड टू दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम. सो उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी राइनोप्लास्टी करते हैं, ठीक है. सो कैरिड आउट इन कंजक्शन विथ फेसलिफ्ट, और फेसलिफ्ट के साथ भी ये किया जाता है, ठीक. नेक्स्ट है ईयर सर्जरी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोप्लास्टी. इट इन्वॉल्व्स स्पिनिंग द ईयर क्लोजर टू द हेड, ठीक है. समटाइम किसी किसी के कान क्या होते हैं, एकदम बाहर की तरफ होते हैं, लाइक एलियन लाइक, ठीक है. तो उसके कानों को क्या करना, क्लोज टू द हेड के क्लोज में लाना को क्या बोलेंगे, ईयर सर्जरी करना बोलेंगे या फिर ऑटोप्लास्टी बोलेंगे, ठीक है. सो मे इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द वेरी लार्ज ईयर, ठीक है. बहुत ज़्यादा लार्ज साइज है ईयर का, उसको रिड्यूस करना, और रीशेपिंग वेरियस बेंड इन द कार्टिलेज. बहुत सारे बेंड्स होते हैं, उनको क्या करना, रीशेप करने का काम भी ईयर सर्जरी में होता है. कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द चिल्ड्रन में भी किया जा सकता है, हैज़ द यंगेस्ट एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज फेस लिफ्ट. व्हाट इज फेस लिफ्ट? राइलिडोडिटेक्टोमी, ठीक है. टू रिमूव रिंकल सर्जिकली. रिंकल्स जो अगर एजिंग हो रहा है पेशेंट को, कई सारे पेशेंट अपनी ब्यूटीनेस को मेंटेन करने के लिए, एजिंग को हटाने के लिए रिंकल्स का सर्जरी करवाते हैं, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड फेस लिफ्ट. द एम इज टू मेक द पेशेंट फेस लुक यंगर, ठीक है. ऑब्वियसली एज को कम करने के लिए, अपना लुक यंगर करने के लिए ये फेस लिफ्ट किया जाता है. डन इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से इसको किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इज लाइपोसक्शन. एंड व्हाट इज इट? Also known as fat modeling, liposculpture, suction and lipotomy or lipo, ठीक है. फैट रिमूव्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. वेरियस पार्ट में जहाँ जहाँ फैट का डिपोजिशन है वहाँ कट आउट करके, जहाँ फैट है वहाँ पे उसको डाइल्यूट किया जाता है और सक्शन मशीन से उसको क्या किया जाता है, सक आउट कर लिया जाता है, ठीक है. सो आई प्रिफर आप एक वीडियो देखें यूट्यूब में सर्च करके, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा व्हाट इज़ लाइपोसक्शन. एंड बहुत सारी सर्जरीज़ का, कॉस्मेटिक सर्जरी का एग्जांपल दिया हुआ है उस यूट्यूब वीडियोस में. सो आप एक बार ज़रूर देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है लाइपोसक्शनिंग, ठीक है. सो फैट रिमूव्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट अ वेट लॉस मैथड. ये एक वेट लॉस करने का मैथड नहीं है, दिस इज जस्ट टू रिमूव द फैट, ठीक है.
ऐसा होगा कि अगर एक बार रिमूव हो गया फैट को, तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट दोबारा फैट गेन नहीं कर सकता। पेशेंट दोबारा फैट गेन कर सकता है, बस उसको करना ये है कि उसको अपना फैट को मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट हो गया है, सो बेसिकली क्या होता है, हम एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू हम फैट रिड्यूस कर सकते हैं और उनको दोबारा बनने में काफ़ी टाइम भी लगता है। लेकिन अगर हम लाइपोसक्शनिंग के थ्रू फैट रिड्यूस कर रहे हैं, सो दिस कैन नॉट प्रॉफिटेबल नहीं होता ये ज़्यादा। फिर से पेशेंट को क्या होगा, फैट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फिर एज यूजुअल पेशेंट हो सकता है। ठीक है, मोस्ट दैट कैन बी टेकन आउट एट वन टाइम इन 5 kg। ठीक है, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg ही निकाल सकते हैं। सो कोई पेशेंट अगर 100 kg का है, तो अगर उसको 60 का वेट अगर अचीव करना है, तो ही हैज़ टू गो फॉर लॉट्स ऑफ सर्जरी। ठीक है, क्योंकि 5 kg ही एक बार में निकलने हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेशन आकर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। सो दीज आर ऑल अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी। नाउ अब है रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी। सो फंक्शन क्या है इसका, टू करेक्ट फंक्शनल इम्पेयरमेंट। बेसिकली फंक्शनल इम्पेयरमेंट को करेक्ट करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किया जाता है, सो दैट ही और हिज और हर नॉर्मल फंक्शन कैन बी अटेन। ठीक है, सो फर्स्टली फंक्शनल इम्पेयरमेंट किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है, व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट। सो फर्स्ट है बर्न, traumatic injury like facial bone fracture and breaks, then congenital abnormality, then infection हो गया, cancer हो गया, tumor हो गया, these can be the cause of the functional impairment। ठीक है, most common reconstructive procedures, ये सारे इनकी वजह से बहुत सारे कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं। माइक्रो सर्जरी टू ट्रांसफ़र इशू। ठीक है, माइक्रो सर्जरी से लेकर के टिश्यू ट्रांसफ़र करने तक का भी रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फर्स्ट है टिश्यू रिमूवल। सो ये क्या होता है, प्रोसीजर टू रिमूव एन एबनॉर्मल ग्रोथ। कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, कोई भी ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, उसको रिमूव करना। ठीक है, कैन आइदर बी बिगिनिंग और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, सॉरी कैन आइदर बी बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर भी हो सकता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर आर इजी टू रिमूव कम्प्लीटली। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर जो है वो एक ही जगह स्टक रहता है, एक ही जगह बैठा हुआ रहता है, वो इधर उधर मेटास्टासाइज नहीं होता। सो वी कैन ईजिली रिमूव इट कम्प्लीटली फॉर एंड। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर पोज मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर एक भी सेल बच गया फिर से वो वहाँ पे ग्रोथ होगा और दिस कैन लीड टू मेटास्टासिस एंड दूसरी जगह फिर ग्रोथ होगा, तो इट कैन कॉज डिफ़िकल्टी फॉर द सर्जरी। ठीक है, एंड मे रिजल्ट इन डेथ इफ़ नॉट सक्सेसफुली ट्रीटेड। सो दिस कैन बी वेरी सीवियर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, नेक्स्ट लेसरेशन रिपेयर। लेसरेशन रिपेयर क्या होता है, वुंड कॉज्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से अगर वुंड हो जा रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेसरेशन रिपेयर मेथड यूज़ करते हैं। मेंट्स अ फियर इन द स्किन एंड मेंट्स अ टीयर इन द स्किन और अदर टिश्यू। ठीक है, जो टीयर हो गया स्किन में और दूसरी टिश्यूज़ में, उसको क्या करना, मेंड करना। ठीक है, ठीक करना। मेंड करना मीन्स ठीक करना। सो गोल क्या होता है, स्टॉप ब्लीडिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रिजर्व फंक्शन एंड रिस्टोर द अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कार रिविजन। इट इम्प्रूव और रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ द स्कार, restore function and correct skin change caused by an injury, wound and previous surgery. And what are the ways to improve appearance? Firstly, complete removal, debrasion, skin flap surgery and skin grafting. These are the methods from which we can revise the scar. Next is क्लेफ्ट, लिफ्ट, लिप और पैलेट। ठीक है, कभी ये कंजेनाइटल डिजीज़ होता है, बेबी कभी कभी क्लेफ्ट लिप
लीप के साथ या फिर पैलेट के साथ बर्थ होता है उसका। सो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के थ्रू हम उसका नॉर्मल फंक्शनिंग क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। सो फिशर और ओपनिंग और अ गैप, दिस इज कॉल्ड फिशर और ओपनिंग, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है, क्लेफ्ट लिप है एंड राइट हैंड साइड में क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है। ये लिप के साथ पैलेट भी हो सकता है या फिर पैलेट ओनली हो सकता है, ठीक है। कॉज बाय एबनॉर्मल फेशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गेस्टेशन, गेस्टेशन पीरियड में अगर एबनॉर्मल फेशियल डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी वजह से ये होता है। एंड कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद सर्जरी, और सक्सेसफुली सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है। देन टेक्निक्स एंड प्रोसीजर इंक्लूडेड इन कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं हम, फ्लैप सर्जरी होता है, लेजर टेक्नोलॉजी, टिश्यू एक्सपांशन एंड स्किन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ्ट और फ्लैप में डिफरेंस क्या है। फ्लैप ग्राफ्ट क्या है, डज नॉट मेंटेन ओरिजिनल ब्लड सप्लाई, एंड फ्लैप क्या है, मेंटेन ओरिजिनल ब्लड सप्लाई। ग्राफ्ट क्या है, अपना खुद का ब्लड सप्लाई वो मेंटेन नहीं कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन अदर टिश्यू फॉर द ब्लड सप्लाई, बट फ्लैप कैन मेंटेन देयर ब्लड सप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्ट, व्हाट इज ग्राफ्ट एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ऑटोग्राफ्ट, हीमोग्राफ्ट एंड xenograft. Autograft is what? A tissue transferred from one part of the body to another. Means पेशेंट के एक पार्ट से टिश्यू निकाल के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना, ठीक है। होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट क्या है, टिश्यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, स्पीशीज सेम रहेगा, ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंस है, मीन्स दूसरे पेशेंट से या दूसरे डोनर से ग्राफ्ट लेकर के दूसरे पेशेंट में क्या करना है, टिश्यू ट्रांसफर किया जाएगा, पर स्पीशीज सेम होगा, ठीक है। और xenograft क्या होता है, अ ग्राफ्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज टू इंडिविजुअल ऑफ अनदर स्पीशीज, ठीक है, दिस इज डिफरेंस हियर। फ्रॉम होमोग्राफ्ट में क्या हो रहा था, सेम स्पीशीज थे लेकिन डोनर और रेसिपेंट अलग अलग थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो डोनर का स्पीशीज़ है और जो रिसिपेंट का स्पीशीज़ है वो दोनों ही अलग होगा। कई सारे xenograft आजकल पिग स्किन से बनाए जा रहे हैं, ठीक है, पिग स्किन हो गया, फ्रॉग स्किन हो गया, इस सब की स्किन से बनाया जा रहा है xenograft, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्राफ्ट क्या है, ग्राफ्ट आर टिपिकली डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ थिकनेस एंड डेप्थ, थिकनेस और डेप्थ के बेसिस पे हम ग्राफ्ट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो स्प्लिट thickness, partial thickness, contain 100% of the epidermis and a portion of dermis. Split thickness graft are further classified as thin or thick, ठीक है। split thickness partial means epidermis का full layer रहेगा 100% रहेगा और कुछ पोर्शन क्या रहेगा, डर्मिस का रहेगा, जिसको हम फर्दर डिफाइन क्लासीफाई करेंगे थिक और थिन में, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल थिकनेस, अब क्या है, कंटेन 100% ऑफ द एपिडर्मिस एंड डर्मिस, यहाँ पे आप 100% एपिडर्मिस और डर्मिस रहेगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ग्राफ्ट, इसके एडवांटेजेस, ठीक है। सो थिन स्प्लिट क्या एडवांटेज क्या है, बेस्ट सर्वाइवल, क्योंकि थिन स्प्लिट है बहुत पतला रहेगा, बेस्ट सर्वाइवल है ये। डिसएडवांटेज है लीस्ट रिजेंबल ओरिजिनल स्किन, पतला है तो ओरिजिनल स्किन से बहुत कम क्या करेगा, ये रिजेंबल करेगा। देन थिकनेस स्प्लिट क्या होता है, हील रैपिडली, ये मोटा है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, हीलिंग कैपेसिटी होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा, ट्रॉमा से लीस्ट रेजिस्टेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है इसमें। पुअर सेंसेशन पुअर होगा। मैक्सिमल सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, इसमें सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज थिक स्प्लिट थिकनेस, पहला था थिन स्प्लिट थिकनेस एंड नेक्स्ट इज थिक स्प्लिट थिकनेस। ये इसमें क्या होता है, मोर क्वालिटी ऑफ द नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन की ज़्यादा क्वालिटी है, लेस कॉन्ट्रैक्शन होगा, लुक बेटर, फेयर सेंसेशन, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, लोअर ग्राफ्ट सर्वाइवल एंड स्लोअर हीलिंग, ठीक है। ग्राफ्ट सर्वाइवल बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन और हीलिंग स्लोअर है इसका, ठीक है, क्योंकि ये थिक है। देन फुल थिकनेस,
मोस्ट रिजेंबल नॉर्मल स्किन को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये। मिनिमल सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है। रेजिस्टेंस टू ट्रॉमा, गुड सेंसेशन, एस्थेटिकली प्लीजिंग, ठीक है। और डिसएडवांटेज पुअर सर्वाइवल, डोनर साइट मस्ट बी क्लोज्ड सर्जिकली, ठीक है, डोनर साइट आर लिमिटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ग्राफ्ट। नेक्स्ट, ग्राफ्ट और वर्सेस फ्लैप। ग्राफ्ट और फ्लैप में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है, सो इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से लिखना, ठीक है। सो लिमिटेड टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द स्किन, स्किन तक ही सीमित है ये, ठीक है। फ्लैप क्या है, कैन कैरी अदर टिश्यू, हम दूसरी टिश्यूज को भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपेंड ऑन रेसिपेंट साइट फॉर न्यूट्रिशन। जो रेसिपेंट साइट है न्यूट्रिशन के लिए उस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। एंड हैज़ ओन ब्लड सप्लाई। फ्लैप क्या होता है, फ्लैप को पूरी तरह से एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कट आउट करके नहीं लगाया जाता है। फ्लैप को क्या है, ऐसी जगह लगाया जाता है जिसका एडजेसेंट हो, मीन्स वो क्लोजर होगा, उसको एक पार्ट से थोड़ा सा कट आउट करके उसका ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगा और दूसरी पार्ट में शिफ्ट किया जाता है। शिफ्ट मतलब उठा के उसको दूसरी जगह चिपका दिया जाता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ हियर दिस, ठीक है। ये पहले हाँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैप। फ्लैप में क्या है, कुछ पार्ट को ऐसे थिनली एकदम कट आउट किया जाता है और उसको उठा करके दूसरी जगह पेस्ट करना होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्ट एंड फ्लैप। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन, हाँ, कॉस्मेटिक में डिस्कलर और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हम कॉस्मेटिक पर्पज से देखें तो कलर दूसरा हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फ्लैप में क्या है, बेटर कलर टेक, लेस लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और कलर तो सेम ही है क्योंकि सेम पेशेंट का है, सो कलर डिफरेंस बिल्कुल हो ही नहीं सकता यहाँ पे। देन नेक्स्ट है लेस अडेप्टेबल टू वेट बियरिंग, ठीक है। वेट ज़्यादा, ये वेट को क्या है, अडेप्ट नहीं कर सकता, लेस अडेप्टेबल है। एंड मोर, फ्लैप इज मोर अडेप्टेबल टू वेट बियरिंग, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट बियर कर सकता है क्योंकि ये सेम टिश्यू का है, सेम पेशेंट का है। देन नेक्स्ट, ग्राफ्ट इज लेस एबल टू सर्वाइव ऑन द बेड विथ क्वेश्चनेबल न्यूट्रिशन। अगर बहुत कम न्यूट्रिशन मिल रहा है ग्राफ्ट को तो वो बहुत चांसेस कम है कि वो सर्वाइव करेगा। लेकिन फ्लैप का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फ्लैप सर्वाइव कर ही जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई इसका मेंटेन है, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रेशर ड्रेसिंग, हमको प्रेशर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी पेशेंट को सो दैट प्रेशर रिड्यूस हो सके। और फ्लैप में क्या है, कोई प्रेशर ड्रेसिंग का नीड नहीं होता। नेक्स्ट, ग्राफ्ट क्या है, कैन नॉट ब्रिज डिफेक्ट्स को ब्रिज नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। लेकिन फ्लैप क्या है, कैन ब्रिज डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल रिस्क फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी। अब कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर तो रहे हैं लेकिन इसके रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग हो सकता है, हेमाटोमा हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, सेरोमा होगा, ठीक है। स्किन टिश्यू डेथ भी हो सकता है, नेक्रोसिस हो जाएगा, डिलेड हीलिंग होगा, स्वेलिंग है, ब्रूइशिंग हो सकता है, पुअर स्कारिंग, नंबनेस, टिंगलिंग, एसिमेट्री, मोस्ट कॉमनली एसिमेट्री हो ही सकता है। देन इरेगुलरिटी, डिम्पल्स फॉर्म हो जाएंगे, टकर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कॉस्मेटिक सर्जरी। देन नेक्स्ट, जनरल अपीयरेंस, जनरल प्रिपरेशन हमको क्या करना है पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली, ठीक है। ऑपरेशन से पहले हमको पेशेंट को क्या क्या प्रिपरेशन देना है। सो फर्स्ट है जनरल प्रिपरेशन, इसमें प्रिपरेशन फॉर नॉन इमरजेंसी प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इंक्लूड इंडिविजुअल एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल कंसिडरेशन, ठीक है। Some operations such as nose reshaping or removal of the rats, small birthmark and tattoos can be done as outpatient procedure under local anesthesia, ठीक है। हम OPD में भी कर सकते हैं, बहुत सारी सर्जरीज हैं, लाइक नोज रीशेपिंग हो गया, रैट्स का रिमूवल है, बर्थ मार्क है,
उसको रिमूव करना है, टैटू रिमूव करना है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ओपीडी में भी परफॉर्म कर सकते हैं अंडर लोकल एनेस्थेसिया. बट मोस्ट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हाउएवर इन्वॉल्व्स अ स्टे इन द हॉस्पिटल एंड जनरल एनेस्थेसिया. क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं पेशेंट का रिकवर नहीं होने का. इसलिए बेसिकली बहुत सारे सर्जरीज में पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे कराया जाता है अंडर जनरल एनेस्थेसिया. ठीक है. नेक्स्ट इज मेडिकल प्रिपरेशन. क्या करने होते हैं, प्रिपेयर फॉर प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड सर्जन डिटेल असेसमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी दैट विल बी इन्वॉल्व. ठीक है. जिस बॉडी पार्ट का भी सर्जरी करना है उसका एक डिटेल्ड असेसमेंट करना होता है सर्जन को. देन स्किन ग्राफ्ट रिक्वायर इवेलुएटिंग सुटेबल एरिया ऑफ स्किन फॉर राइट कलर एंड टेक्सचर टू मैच द स्किन एट द ग्राफ्ट साइट. ठीक है. ग्राफ्ट साइट जहाँ पे हमको स्किन को स्टक करना है, चिपकाना है, उस एरिया का कलर, टेक्सचर सब कुछ देख करके हमको क्या करना है, इवेलुएट करके रखना है स्किन ग्राफ्ट के लिए. फेस लिफ्ट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी in the eye area require very close attention to the texture of the skin and the placement of the surgical cuts. ठीक है. फेस लिफ्ट और कॉस्मेटिक सर्जरी में बेसिकली क्या होता है, हमको बहुत ही माइन्यूट वर्क करना पड़ता है, टेक्सचर देखना है स्किन का. सो दैट क्योंकि ये ऑब्वियसली ये ब्यूटी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए है, और अगर किसी भी वजह से अगर ब्यूटी ख़राब हो रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी का. सो इसलिए बहुत माइन्यूट वर्क करना पड़ता है, और जो सर्जिकल कट्स हैं वो उनका जो प्लेसमेंट है बहुत ही क्रिटिकल होता है. ठीक है. इंसिजन्स जो लगाने होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है इसमें. Person scheduled for plastic surgery under general anesthesia will be given a physical examination, blood and urine test and other tests to make sure that they do not have any previously undetected health problem or blood clotting disorders. ठीक है. जो भी पर्सन जिसका प्लास्टिक सर्जरी हो रहा है एनेस्थेसिया के अंडर में, उसका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, सारे टेस्ट करवाने हैं, सो दैट कोई किसी भी टाइप की अगर हिस्ट्री है उसको डिजीज़ की तो वो हम डिस्क्लोज कर सकें. ठीक है. The surgeon will check the list of the prescription medicine that the prospective patient may be taking to make sure that none of them will interfere with normal blood clotting or interact with anesthetic. ठीक है. पेशेंट को जो भी मेडिसिन चल रहा है उसकी जो हिस्ट्री है वो सबको क्या करना है, डॉक्टर्स को बताना है. डॉक्टर्स उसका प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, सो दैट उनको ये कंफर्म हो जाए कि नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और एनेस्थेसिया में भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है. Next, individuals are asked to avoid using aspirin or medication containing aspirin for a week or 2 weeks before surgery because these drugs lengthen the time of blood clotting. ठीक है. एस्पिरिन क्या होता है, कोएगुलेंट है, कोएगुलेट कर देता है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम को लेंथन कर देता है. इसीलिए हमको देखना है कि पेशेंट कुछ दिनों तक, स्पेशली 2 वीक्स तक, कोई एस्पिरिन या ऐसी कोई मेडिसिन जिसमें एस्पिरिन हो वो मेडिसिन ना ले. ठीक है. स्मोकर आर आस्क्ड टू स्टॉप स्मोकिंग 2 वीक्स बिफोर सर्जरी बिकॉज स्मोकिंग इंटरफेयर्स विद द हीलिंग प्रोसेस. ठीक है. जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको सर्जरी से 2 हफ्ते पहले तक स्मोकिंग करना बंद करना होगा, क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है, इंटरफेयर करता है हीलिंग प्रोसेस को. For the some time of plastic surgery, individual may be asked to donate several units of their own blood before the procedure. In case of transfusion is needed during the operation. ठीक है. ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कुछ यूनिट ब्लड डोनेट करवाते हैं, सो दैट अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अगर ज़रूरत पड़े तो उससे काम हो जाए. ठीक है. द प्रोस्पेक्टिव पेशेंट विल आस्क टू साइन अ कंसेंट फॉर्म बिफोर द ऑपरेशन, और बेसिकली एक कंसेंट फॉर्म पेशेंट से साइन करवाया जाता है बिफोर ऑपरेशन. ठीक है. नाउ पर्सनल एजुकेशन हम क्या दे सकते हैं, द सर्जन विल मीट द प्रोस्पेक्टिव पेशेंट बिफोर द ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड in order to explain the procedure and to be sure that the individual is realistic about expected results
ठीक है। जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने वाला है उस सारी चीज़ों को डॉक्टर्स को क्या करना है, पेशेंट को बताना है, ठीक है, कि ऑपरेशन में ये सारी चीज़ें होंगी, आपका फिर लुक ऐसा होगा, हर चीज़ों को बताना है पेशेंट को, ठीक है। दिस कंसिडरेशन इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल अंडरगोइंग कॉस्मेटिक सर्जरी। और ये सारी चीज़ें उन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंडर में जाने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है मेडिकल कंसिडरेशन। सम पीपल हैव नॉट द प्लास्टिक सर्जरी बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल रिस्क। कुछ ऐसे रिस्क हैं जो जिस पेशेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवाएं। और ऐसे कौन से पेशेंट हैं? पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम अ हार्ट अटैक, severe infection and other serious illness, people with infectious hepatitis or HIV infection, individual with cancer whose cancer might spread, people who are extremely overweight, individual who are more than 30% overweight should not be liposuction, person with blood clotting disorders, ठीक है। सो ये सारे पर्सन जिनको ये सारी प्रॉब्लम है वैसे लोग प्लास्टिक सर्जरी ना करवाएं, ठीक है, क्योंकि उनको मेडिकल रिस्क हो सकता है। देन नेक्स्ट है साइकोलॉजिकली सपोर्ट हमको देना है पेशेंट को। प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हैव इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डायमेंशन बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू प्लेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस इन द वेस्टर्न सोसाइटी, ठीक है। बेसिकली ये जनरल क्या होता है, वेस्टर्न सोसाइटी में देखने मिलता है। इंडियन कल्चर में प्लास्टिक सर्जरी इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर में ही ज़्यादा देखने सुनने मिलता है। Many of the people who are born with visible deformity or disfigured by accident later in life develop emotional problem related to the social rejection, ठीक है। हमारी सोसाइटी क्या करती है, ऐसे पर्सन जो कुछ डिफॉर्मिटी के साथ बॉर्न हुए हैं या फिर लाइफ में एक्वायर कर रहे हैं उस डिफॉर्मिटी को, ऐसे पर्सन को सोशल रिजेक्शन देखने को मिलता है। सो इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन चीज़ों को स्टॉप करने के लिए दे गो फॉर कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ठीक है। अदर पीपल वर्किंग इन फील्ड सच एज एक्टिंग, मॉडलिंग, मीडिया, जर्नलिज्म एंड इवन पॉलिटिक्स where their employment depend on how they look, especially medicine and acting, ठीक है। मेडिसिन, मॉडलिंग एंड एक्टिंग ये बहुत ज़्यादा लुक पे डिपेंड करता है। The people who look beautiful, who look gracy, who look attractive are more likely to serve acting and modeling, ठीक है। सो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका लुक, उनका मॉडलिंग परफेक्ट रहे, ठीक है। सम पीपल हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी एंड थिंक दैट इट विल सॉल्व ऑल देयर लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही उनका जो रिजल्ट आएगा बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा और वो उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स क्या कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कॉस्मेटिक सर्जरी से, ठीक है। सो दीज आर द साइकोलॉजिकल थिंग्स दैट वी हैव टू ओवरकम विथ, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट। सर्जरी हो गई, उसके बाद हमको क्या क्या आफ्टर केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को। सो मेडिकल क्या है, मेडिकल आफ्टर केयर फॉलोइंग प्लास्टिक सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थेसिया इंक्लूड ब्रिंगिंग पेशेंट टू अ रिकवरी रूम, monitoring their vital signs and giving medication to relieve pain as necessary. Person who have had fat removed from the abdomen may be kept in bed for as long as 2 weeks. Individual who have had mammoplasties, breast reconstruction and some type of facial surgery typically remain in the hospital for a week after operation, ठीक है। For those who have had liposuction or eyelid surgery are usually sent home in 2 or more days, ठीक है। Next is people who have had outpatient procedure are usually given antibiotics to prevent infection and are sent home as soon as their vitals are normal.
नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्या देते हैं हम लोग आफ्टर केयर में. Some individual may need follow-up psychotherapy or counseling after plastic or reconstructive surgery. These people typically include children whose school and social relationship have been affected by birth defect, as well as person of any age whose deformity or disfigurement were caused by trauma from accident, war, injuries or violent crime. Next, what are the risks associated with plastic, cosmetic and reconstructive surgery, including post-operative complications that can occur with any surgical operation under anesthesia. So these complications are wound infection, internal bleeding, pneumonia and reaction to the एनेस्थेसिया. इन एडिशन टू दिस जनरल रिस्क, ये सारे रिस्क है, हमको पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपको ये सारे रिस्क हो सकती हैं. सो यू शुड कीप वन सेल्फ अवेयर अबाउट दिस. सो in addition to these general risks, some plastic, cosmetic and reconstructive surgical procedure carry specific risk. ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क कैरी करते हैं, सच एज फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ परसिस्टेंट पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग इन द एरिया ऑफ सर्जरी. ठीक है, इन्फेक्शन इनसाइड द बॉडी रिलेटेड टू इंसर्टिंग अ प्रोस्थेसिस, anemia or fat embolism from liposuction, rejection of skin graft or tissue transplant, loss of normal feeling or function in the area of operation. So these are the complications that can occur after the plastic surgery. So we have to inform all these about the to the patient. Lastly, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, हमको क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है. सो फर्स्ट है इनिशियल प्रेशर ड्रेसिंग करना है, विल बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 24 to 48 आवर्स तक. इफ द वुंड बिगिन टू ऊज, अप्लाई फॉर्म प्रेशर फॉर 10 to 15 मिनट. ठीक है, डू नॉट गिव एस्पिरिन और एस्पिरिन कंटेनिंग मेडिसिन. मोस्ट स्किन ग्राफ्ट आर हेल्ड इन प्लेस. ठीक है, मैक्सिमम ग्राफ्ट को करना है, कोशिश करना है कि स्किन ग्राफ्ट को उनके प्लेस में रखे बाय प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करके. क्लीन साइट एंड अप्लाई ऑइंटमेंट, साइट को क्लीन करना, अप्लाई करना ऑइंटमेंट. कीप द ग्राफ्ट एज मॉइस्ट विथ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट. ग्राफ्ट में एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हमको रेगुलर लगाते रहना है ताकि जो एजेस हैं वो क्या रहें, मॉइस्ट रहें, सो दैट वहाँ पे प्रेशर क्रिएट ना हो. प्रोटेक्ट द ग्राफ्ट फ्रॉम सन से प्रोटेक्ट करके रखना. इंस्पेक्ट द ड्रेसिंग डेली. आफ्टर 2 to 3 वीक एनी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर मे बी अप्लाइड टू द स्किन डोनर साइट. ठीक है, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट, अवॉइड स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. सो फार this is all about the plastic surgery. I hope you all understood that. So thank you so much.